السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصحاب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. میں کر تہ برونٹ کن بی اک ساتنس سوے آئے مبارکہ تلاوت یس زن اسے رات کے درس خاطر تلاوت کرے. امہ آئے مبارک گۄڈنیُک حصہ کریو اس مکمل. میں کریو عرض کہ یتھ آئے مبارکہ مجھ حقوق العبادن متعلق خصوصی طور پر آمز مسلمانن ہدایت کرنے اور حقوق العباد تمن ہند تفصیل بیان کرنے برونٹ کور اللہ تبارک و تعالیٰ ہن پنہ حقوق ذکر کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اس کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ والدین ہیں. والدین ہند کیا حق بہرحال اس کی تفصیل بھی ہم نے کل کے درس میں پڑھ لی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العبادن مز سارے کھت گۄڈنیتھ یُس زن گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ یِہُنٛد حق چھُ سُہ گوٚو والدین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِذِي الْقُرْبَى یعنی اس کے بعد قرابت دار رشتہ دار. قرابت دار رشتہ دار وہ رشتہ دار ہیں جو انسان کے سب سے قریب ہوتے ہیں اور جو خونی رشتے یم زن چھِ آسان تمن چھِ ونان أسۍ قرابت کے رشتے. بہرحال اس میں باپ اور ماں کو چھوڑ یعنی باپ اور ماں وہ تو آ گئے والدین میں. اس کے بغیر یہ زن مام ماس چاچا ہے بڑا بھائی ہے بہن ہے یہ سب کس میں آتے ہیں قرابت کے رشتے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں حکم فرما رہے ہیں ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو اور دوسرا قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. بہرحال قرابت دار رشتہ دارن ہنز انتہائی زیادہ فضیلت قرآن پاکن تہ بیان کرمز اور احادیث مبارکہ میں بھی. مثال کے طور پر اکس حدیث میں فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہوتی ہے یعنی ماں سے زن آسن یہ ماں کے درجے کے برابر ہے. اور اکس حدیث میں فرمو کہ یس ہسا چاچا آسن وہ باپ کے قائم مقام ہے یعنی پتر یس زن کمس قائم مقام. جس طرح باپ کے حقوق ہیں یا جس طرح باپ کا ادب ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اسی طرح چاچا کا بھی ادب ہے. اور اتھے پاٹھن شریعت تعلیم جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کے برابر ہے. اور اسی طرح یہ زن مختلف یم زن خونی رشتہ یا یم زن قرابت دار رشتہ بہرحال ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور احادیث میں بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اکس حدیث میں فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر کا شخص صدقہ کرے تو کسی عام شخص پر صدقہ کرنے سے اس کو صرف ایک ثواب ملے گا صدقے کا. مگر اگر یہ صدقہ یہ کرنا قرابت دار رشتہ دار خاطر بہرحال اس میں اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دوسرا یس زن امس سۭتۍ صلہ رحمی ہند یس زن ثواب اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. اسی لیے فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رشتوں کو کاٹے یعنی بلکہ یہ حدیث کیا حدیث یہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم کہ جنت میں وہ شخص ہرگز بھی داخل نہیں ہوگا جو ان خونی رشتوں کو قرابت کے رشتوں کو توڑتا ہوگا. اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس کے بعد والیتامہ اور ام پتہ کمن ہند ذکر یتیمن ہند. بہرحال ان کا تو ہم نے پڑھا
पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ा, सूरह निसास में पोड़। बहरहाल यतामान सत्य हुस्न सलूक करने आमुत ऐसे हुक्म करने, बिलखसूस वो यतीम जो हमारी कफालत में हूँ। यतीमन ज किस्म, आपको जो आम यतीम होता है जो महल्ले में या बस्ती में होता है उसके साथ भी हुस्न सलूक का हमें हुक्म दिया गया है, और बिलखसूस वो यतीम जो हमारी कफालत में हूँ। बल्कि रवायत में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मुसलमान घर मुझ सारे खुद बेहतरीन घर सो जिसमें कोई यतीम हो और उस यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। सारे खुद बेहतरीन घर मुसलमान घर मुझ गो सबसे पहले सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक हमारे माँ बाप यानी वालदेन, वालदेन के बाद हमारे कराबतदार रिश्तेदार, कराबतदार रिश्तेदारों के बाद मिस्कीन, मिस्कीन और यतामा यानी यतीम। और यतीम अमिस मतलब वो में यतीम किसको कहते हैं? ऐसा शख्स जो बालिग होने से पहले जिसका बाप इंतकाल कर जाए उसे यतीम कहा जाता। वल मसाकीन, और किन का हक है, किन के साथ हुस्न सलूक का कहा गया है? मिस्कीन के साथ। बहरहाल मिस्कीन यम ज टर्म, एक कुरान में इस्तेमाल हुआ है मिस्कीन, दूसरा हुआ है इस्तेमाल फकीर। हालांकि उर्दू में यह हम माना लफ्ज है, उर्दू मज दशवे अक्सी माना मज इस्तेमाल करना। मिस्कीन और फकीर को हम आमतौर पर एक ही माना में उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मगर अरबी में थोड़ा सा इनमें फर्क है। मिस्कीन उस गरीब को कहते हैं, उस मखलूकुल हाल इंसान को कहते हैं जिसके पास खाने पीने के लिए सामान भी मैसर ना हो, यानी बिल्कुल युजन फकीर है, उसको मिस्कीन कहते हैं। और फकीर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास कम से कम एक वक्त का खाना, एक युजन वक्त उसका खाना पीना मैसर हो और उसको पहनने के लिए भी कुछ ना कुछ हो, उसको फकीर कहते हैं। इनसे लोग पता कि मिस्कीन जो होता है ये फकीर से भी नीचे दर्जे में है। इसीलिए यहां पर कहा गया कि आपके हुस्न सलूक का वालिदैन के बाद आपके जिल कुर्बा यानी कराबतदार रिश्तेदार, फिर यतीम और फिर मिस्कीन जिनके पास कुछ भी खाने पीने या पहनने के लिए ना हो। वल जारी दिल कुर्बा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिए, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि देने वाला हाथ वो लेने वाले हाथ से बेहतर, यानी युस अथ दी खुदा से वत में खैरात वो लेने से बेहतर है। अलबत्ता इसमें भी शरीयत ने हमें उसूल सिखाए हैं कि किन पर खर्च किया जाए। सबसे पहले हमारे खर्च का कौन मुस्तहिक है? हमारे घर वाले, यानी मोल मोज, खानदारी, बच्चे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो पन्निस अकिस हदीसस में फरमो बेहतरीन दिरहम सह दिरहम युस पन्निस अयालस पे खर्च करे, यानी सबसे बेहतरीन दिरहम वो है दिरहम को पोंस सो युस कमिस खतर यह कर इस्तेमाल पन्निस अयालस खतर। ऐसा नहीं है, शरीयत यह तालीम दिवन कि हम अपने बच्चों के जायज हकूक भी तलब करें, हम अपने माँ बाप के लिए जायज खर्चा जो है उसको भी बिल्कुल ये सर रोक के रखें और वहां बाहर सखी बने फिरते रहे। ये इस्लामी तालीम के, बल्कि इस्लाम हमें तालीम करता है कि सबसे पहले हमें माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है। इसके बाद अगर हमारा बचता है या अगर हमसे कुछ हो, और मुसलमान का यह वतीरा भी है कि वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं पालता या 500 खवन के, बल्कि इसके बाद वो बाहर निकलता है। मगर गोडनेथ कुहुंद हक पन्निस मालिस माजिन और पन्नन रिश्तेदारन हूं तो पन्नन यम जन बाल बच्चे हैं। इसमें यह भी आप याद रखिए, यहां पर कहा गया है कि यतीम और मिस्कीन उनका भी हक है, यानी उनके साथ भी आपको क्या करना है? हुस्न सलूक। मगर आज के जमाने में ये जर आज बन्योमुत प्रोफेशन, आज गाड़ियां आती हैं और वो यतीमों और मिस्कीनों के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये फलानी यतीम ट्रस्ट से गाड़ी आई है, फलानी मिस्कीन ये जन कफालत कर। तो इन लोगों को अपना ज़कात का पैसा देना या आम सदका देना बहरहाल उलमा इसकी इजाजत नहीं देते हैं। क्या क्योंकि इससे हम प्रोफेशनल गदागरी को ये जन फरोग देते हैं और ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम छुन ये मिजाज कि इस्लाम क्या करे लुकन हिंद या यतीमन हिंद कफालत खतर क्या पीटी डंडोरा वो पीटेगा नहीं, बल्कि इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि आप मुनज़्ज़म तरीके से उनके लिए बैतुल माल कायम कीजिए। आप चोरी छुपे उनको अपनी हाजात उन तक युजन तुमन हाजात उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसलिए युजन गाड़ियों में योर युजन मुख्तलिफ गदागर पेशवर घर घर फेरन इनको सख्ती के साथ डिस्करेज करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता रसूलुल्लाह फरमाओ फअम्मा साइला फला तनहा व अम्मा साइला फला तनहा, इस कुरान का हुक्म कि साइल को झिड़को मत। हाँ, बेहतर तरीके से इनसे कहो कि माफ थयो हस, हम इस तरह से युजर अपने सदकात को या अपने युजर खैरात को इस तरह हम खारिज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक मुनज़्ज़म तरीका है, हम उस हिसाब से लोगों को या युजर पान बस्ती तुम मदद करन।
अच्छा, ये इस वजह से मैंने कहा कि आज बदकिस्मती सानिस समाज जुम्मा आसन, मौलवी ऐलान करता है फलानी यतीम है या फलानी बीमार है, उसके लिए चंदा कीजिए। हत्ता कि ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लामिक मिजाज ये कि अगर कोई गरीब है, कोई यतीम है, महल्ले वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो उसके उस अखराजात को पूरा करे। वहाँ के बड़े जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, वहाँ के बैतुल माल चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। असल मज गसे गोड़ मौलवी ये ऐलान करन कि ये कोई अच्छा तरीका यहाँ नहीं है जमा करने का, इसके बदले आप बैतुल माल कायम कीजिए, इसके बदले आप मुनज़्ज़म यमजन इदारे कायम कीजिए जिनसे इनकी कफालत हो सके और इनकी इज्जत नफ्स यजन वो भी सेफ रहे। बहरहाल पे में ज़िम्नन, ये तो इसकी तफसीर में नहीं है मगर हालात की वजह से मैंने ये कहा। वल जारी दिल कुर्बा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हक है। अम पत यम हका वन वल जारी दिल कुर्बा, ये जन जार कहते हैं हमसाया को। जार वन अरबी पर केमिस वल जारी दिल कुर्बा। इसके बाद कराबतदार हमसाये का हक आता है। हमसायन हिंद ज किस्म कुरान पाकन वर्मित। एक है वल जारी दिल कुर्बा, वो हमसाया जो रिश्तेदार भी हो, यानी कराबतदार रिश्तेदार, और वल जारिल जुनुब, और दूर का ये जन हमसाया। इसकी दो तफसीरें उलमा ने की हैं। एक तफसीर ये कि पहले उसका हक है, यानी उसके भी हुकूक अदा करने हैं जो हमसाया भी हो और रिश्तेदार भी हो। और हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमसाया अगर आपका हमसाया कोई है, अगर वो सिर्फ हमसाया है तो उसका एक हक है, अगर वो हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है उसके दो हक हैं, और अगर वह हमसाया भी है, रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है उसके तीन हक हैं। गो सारे को ज्यादा केमिस हमसाय सिन हक युस हमसाय ते आस, पता आस रिश्तेदार ते, पता आस मुसलमान। अब खुद अंदाजा लगाइए, हमारी बस्ती पर अगर पन्निस माहौलस में पन्निस महलस करो ये अतन, तो हमारे सारे रिश्तेदार किस वाले फिक्रे में आते हैं? वल जारी दिल कुर्बा, यानी कराबत के रिश्तेदार। और एक तफसीर इसकी ये लिखी गई है कि वो हमसाया जो बिल्कुल जिनके दरवाजे मिले हुए हों, यानी नजदीक आसन। और इसमें उलमा ने लिखा है 40 घर ये सब जारी दिल कुर्बा में आता है, यानी 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे 40 घर किस में आते हैं? इस कराबत के हमसाय में। तो इसका भी इज़न हक छ। वल जारिल जुनुब, वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब। और इसके बाद किनका हक आता है? दूर के हमसाया। दूर के हमसाये से मुराद है वो हमसाया जो रिश्तेदार ना हो मगर हमसाया है, और वो रिश्तेदार जो गैर मुस्लिम हो उसके भी हुकूक हैं, अमसिन तिश हुकूक। बल्कि रिवायत में आमद हमसाय सिंच यीत हक कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हमसाय के हुकूक के बारे में मुझे इतनी ताकीद की कि मुझे अंदेशा होगा कि कहीं इनको वरासत में न शामिल कर दिया जाए। यानी ये आय क्या करना? हमसाय से ताकीद करना, अमसिन हुस्न सलूक। और इससे भी शदीद वईद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम। तेलक फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कि तुम में से वो शख्स हरगिज भी मुसलमान नहीं है, तुम में से वो शख्स हरगिज भी मुसलमान नहीं है, तुम में से वो शख्स हरगिज भी मुसलमान नहीं है। सहाब सब गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि रसूलुल्लाह कमिस मुतलशान की ईशन क्या। फिर इसके बाद रसूल ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसकी तकलीफ से उसका हमसाया मामून ना हो, क्या वो जन्नत में हरगिज भी नहीं जाएगा। अब खुद अंदाजा लगाइए कि हमारा ताल्लुक अपने हमसायों के साथ कैसा है। बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो 20 हदीस में फरमो कि वो शख्स मूमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर खाए और उसका हमसाया वो भूखा रहे। वो युशर मूमिन के, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। और उलमा उलमा हमारे असलाफ जो हैं, जरा उनकी जिंदगी पर जरा नजर दौड़ाइए। रवायत मुझ आमद सान असलाफन मुतलिक कि जब वो खाना पकाते थे, यम सातन तुम क्या करन, यम सातन तुम बत रनन या का न्यामत आज सारे को असल सुन मान कुस, आज असल सुन मान माज या यम सातन वाज बना। तो उन दिनों अगर उनके पास उतना ही होता कि मतलब कम ही आए, वो ताकीद करते थे घर वालों को कि दायर दरवाज करो बंद ताकि मुशुक गए नबर के यम सिंदर बचन वाय तकलीफ अम सिंदर गए तुमन गए भैया। या तो वो ये कहते थे कि पहले उनको पहुंचा दो फिर हम बाद में खाएं। बल्कि हमारे असलाफ के बारे में किताब में ये भी लिखा है कि तुम अगर पन्न बचन कह दिया ना मेव का,
अगर उतना ही होता जितना होता तुम बचन ताकीद थावन कर तरबियत कर कि इन नबर कुनत नीरियो ये मेव हेत या ये दिल त्रयू नबर कुन। क्यों? क्योंकि इनको देख कर हो सकता है कि हमसाए के बच्चे जो है उनका भी दिल भर आए या तुमन दिल सुत करे वो। अब खुद अंदाजा लगाइए, आज हम 10-10 न्यामतें खाते हैं, 15-15 न्यामतें खाते हैं, हम आज साल तो वाजवान कर मगर हमसाय आसन वहाँ बड़े बड़े अफसर हम ये क्या वन सब आसन सारी मगर हमसाय आसन हता ये कर शुभ मेनिस क्या वन सालस में। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन है ही नहीं जिसकी तकलीफ से और जिसके ये सर खुद पेट भरकर खाए और उसका हमसाया जो है वो क्या हो भूखा। बल्कि आप में वाक़ा का मैंने पहले भी ये सुनाया है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुतलिक आया है कि उनकी हमसायगिरी में एक यहूदी बसता था। तम से हमसायगिरी में यहूदी बसना बहरहाल उसने अपना मकान किसी मजबूरी के तहत बेच दिया, यानी एमको नीलामी कर पन्निस मकानस। बहरहाल उसने इसकी बहुत ज्यादा कीमत लगाई। ये बात हन वाल तुम वन कि ये लाइन तूत ये मकान आप क्यों इसकी इतनी बड़ा चढ़ा कर कीमत करते हैं। तो एम हमसायर एम यहूदन वनक दोनक नहीं, मैं ये मकान की कीमत नहीं लगा रहा हूं, मकान की कीमत तो उतनी ही है जितना आप कहते हैं। जो मैं जायद कीमत आपसे लेता हूं ये मैं हमसायगिरी की कीमत ले रहा हूं, क्योंकि मेरा हमसाया इतना नेक है कि मैं अम सिंद तरफ जात तकलीफ यह अख जमान ये सान हमसायगिरी कीमत लगन। मगर आज हमारा हाल ये है कि लोग हमसे दूर भागते हैं कि ना ये कैसे तकलीफ का वादनाउन। अब कुरान की तालीम ये है, अब खुद अंदाजा कीजिए कि हम कितना कुरान पर अमल करते हैं। वबिल वालिदैन ihsana वबि दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब। अब किनका हक आ गया? करीब के रिश्तेदार यानी कराबतदार रिश्तेदार और दूर के ये कराबत के ये हमसाया और दूर के हमसाया। वल जारिल जुनुब। और अब तब कुरान पाक कितना जेवजार, और आप देखिए खुद मीटर लगाइए अपने ऊपर कि हम कहाँ हैं। वल जारिल जुनुब। और अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद कहा है वल जारिल जुनुब। एक तो हो गए वो हमसाया, अब दूसरा है साथ का हमसाया। वल जारिल जुनुब को साथी युजर पानस सूद आसन छ। अब पानस सूद आसन मतलब क्या को, यानी ऐसा शख्स वल जारिल जुनुब वस्सहाबी बिल जम। वस्सहाबी बिल जम कहते हैं जो अपने साथ कुछ वक्त के लिए हो, उसके भी हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किए हैं। मसलन कौन सा है? मिसाल के तौर पर इसका जित पर शहरताएं सुमवस खत, अब जो मेरे साथ सीट पर बैठा हुआ ये मेरा साहिबी जंब है, यानी ये मेरा सफर का या कुछ देर के लिए मेरा साथी है। हुच हमेश खतर साथी हमसाय वरियस 2 वरियन 10 वरियन या कभी उम्र भर भी होता है। मगर कुरान इतनी डिटेल्स बताता है हुकूक की कि उस वक्ती तौर पर चोन साथी छ इसके ऊपर भी आपके कुछ हुकूक है, यानी तह पे अमसिंद के हुकूक। अब हमारा मामला क्या है? अम सातन खसन सोमस गोडनथ थवान जंग वहरत ताकि पान गस खुलडुल बिहुन मगर हो चल अत क्या ब्रकन। लेकिन कुरान कहता है वस्सहाबी बिल जंब, आपके साथ रहने वाला जो है इसके भी आपके क्या है हुकूक है। इसी तरह मजलिस में यम सातन मजलिस में बिह पान बिहन पढ़नस, अगर कोई बाहर से आता है हम सुकड़ने को तैयार, ये भी वस्साहिबी बिल जम में आता कि इसके भी आपके ऊपर क्या है हुकूक है। बहरहाल यमजन सफर दौरान हुकूक, या इसी तरह इतना ही नहीं हम ड्यूटी करते हैं सभी सारी मुलाजिम पेश या कोई बाग में है। अब मुलाजिम जो आपका साथी कुछ घंटों के लिए है इसके भी हुकूक आप पर आयद होते हैं कि आप इसके साथ कैसे बात करते हैं, हुकूक अदा कर खतर पन सहूलत कुर्बान कर ताकि इसको सहूलत पहुंचे। ये सब कुछ आता है किसमें? वस्सहाबी बिल जम, यानी साथ वाले साथी के भी क्या है हुकूक हैं। और पहले जमाने में इस्लाम फैलमुत दरसों से या तकरीरों से क्या, इस्लाम असल में फैला है किन के जरिए से? इन्हीं आला अखलाक के जरिए से। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान साथ वाले पड़ोसी जो कुछ घंटों के लिए कुछ मिनटों का साथी है उसके हुकूक भी अदा करते हैं, तो इन चीजों से गैर मुस्लिम भी मुतासिर होते थे और वो फौरन क्या पढ़ते थे? कलिमा पढ़ते थे। वस्सहाबी बिल जम्ब वब्नि सबील। हाँ, और मुसाफिर के भी हुकूक हैं। आपको इजन से सफर सुख साथी छी, चाहे 21 मिनटस घंटस या कहीं बैठे हुए हैं, इजन कुन सातन किसी मीटिंग में जाते हैं
किसी जलसे में जाते हैं या किसी जगह बैठते हैं, सो ये जन कहन घंटन कहन मिनटन चे उसके भी हुकूक हैं, वो होगा बस साहिब बिल जम। दूसरा है वब्न सबील, यानी मुसाफिर जो रास्ते चलता हो उसके हुकूक भी बयान किए गए हैं। अच्छा, इसके क्या हुकूक हैं? इनसे हुकूक चाहिए कि अगर वो आपसे रास्ता पूछे उसको रास्ता दिखाओ, यानी अगर चसो बात प्रिसी यूजर बात एरा गहरा पाकन तो आपको इसको रास्ता दिखाना है, बल्कि ज्यादा असल तरीक संतुक तरीक चाहिए कि आप उसके साथ चले जाएं और उसको वो दिखाएं, अगर टाइम है तो, अगर नहीं तो उसकी रहनुमाई करें। अगर कोई आगे से खतरा रास्ते में है उसको उस खतरे से आगाह करें। क्या ये भी है किसके हुकूक? वब्न सबील, रास्ते चलते जो मुसाफिर हैं। रवायत में आमद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि रास्तों पर बैठने से बचो, यानी रास्तों पर मत बैठा करो। साहब सब को इसके बगैर तो हमारा चारा ही नहीं, यानी एवरेशन चार के क्या इसके अरब के माशरे में लोग बैठे रहते थे वहां पर सड़कों पर, यानी जाए वहीं पर उनकी मीटिंग्स भी होती थी, वहीं पर उनके फैसले भी होते थे। तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि अगर आपका बैठना नागुजीर है तो फिर रास्ते के हुकूक अदा करो। तो क्या करियो? रास्ते के हुकूक। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल रास्ते के क्या हुकूक हैं, वाथिन क्या हुकूक? तो जनाब मोहम्मद रसूल ने फरमाया कि रास्ते के हुकूक ये हैं कि आप अपनी नजरें नीची करो, यानी यमजन एरे गेरे आसन पकन या गार मोहरम कोई चलता होगा उनसे अपनी नजरें बचाओ। एक तो ये रास्ते का हक है। दूसरा फरमाया कि जो भी आए या तो सलाम करो या सलाम का जवाब दो, यानी यहाँ से तो सलाम कर या तो आप सलाम करो, या अगर वो सलाम करता है तो सलाम का क्या करो या। और तीसरा हक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भली बात का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, यानी इंसात का कारण क्या? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तो वब्न सबील, रास्ते चलते हुए मुसाफिर के भी हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में बयान किए हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, और आखिरी दर्जे में हुकूकुल इबाद, वमा मलकत ऐमानुकुम, वो लोग जो आपके मातहत हों, यानी असल में तो गुलामों के बारे में, लेकिन गुलाम तो आज है ही नहीं, इसलिए उलमा ने इसमें मुफस्सिरीन ने कहा कि जो आपके मातहत हों, आप किसी इदारे के सरबराह हैं, आपके महत कुछ मुलाजिम काम करते हैं, उनके हुकूक भी, यानी तुमने उनको उनकी इज्जत का ख्याल रखना, उनसे अगर कोई गलती हो गई तो उस पर दरगुजर करना, उनको समझाना हो तो बड़े एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम है उनको वक्त पर तनख्वाह देना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, अगर वो कभी बीमार होते हैं तो उनकी बीमार पुरसी करना, अगर इनको कोई हाजत है तो उस हाजत को अगर आपके इख्तियार में है उस हाजत की हाजत रवाई करना, ये सब कुछ आता है। वमा मलकत ऐमानुकुम, मातहतों के हुकूक बयान इज़्ज़त उनका अदा करना, और मातहत में सबसे पहले आपकी बीवी भी आती है, यानी उनके हुकूक भी अदा करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखुरा। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाहुल मुस्तान एम टुकड़िच तफसीर कर इस पगा, क्योंकि इसका ताल्लुक अगली आयत के साथ है। रब्बुल आलमीन इसमें दुआ कि रब्बुल आलमीन दीन इस कुरान जन तालीमात पर अमल करो तौफीक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।